सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी 1.1 के लिए हमको 3 बातें पढ़ना है। एक्सरसाइज अपने पास 4 एक्सरसाइज है इसमें सिमिलैरिटी में। 4 एक्सरसाइज में 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। 1.1 के लिए हमको 3 बातें समझना है। यदि वो 3 बातें हमको समझ में आ जाती है तो 1.1 का कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो है, जो हमको पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। हमें 3 प्रॉपर्टी है, रेशियो ऑफ एरियाज की 3 प्रॉपर्टी पढ़ना है जिसे हम 1.1 सॉल्व कर लेंगे। क्या पढ़ना है हमको? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स। पहली प्रॉपर्टी मैं ऐसा ट्रायंगल लेता हूं, देखो इसका नाम ले लिया मैंने ABC और दूसरा ले लिया PQR। These are the 2 triangles. One is ABC and other is PQR. In this triangle, height of ABC is AD and height of PQR is PS. What type of triangle is this? Both triangles have different base and different height. Both triangles have different base and different height. Base of ABC is BC and base of PQR is QR. Height of ABC is AD and height of this triangle is PS. First property, if this type of triangle is given, means if triangle have different height and different bases are given, then what we have to do? We know the area of triangle ABC. What formula? According to the formula, base multiplied by height. Base multiplied by height. Again, area of triangle PQR equal to half base is QR multiplied by PS. PS is the height of this triangle. We want to do the ratio of the areas, means their division. Division of their areas is the ratio of area. So we find the ratio of area. What do we get? Area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to half BC multiplied by AD upon half QR multiplied by AC. What we get? BC multiplied by AD upon QR multiplied by AC. Not AC. QR multiplied by PS. Here also QR multiplied by PS. QR multiplied by PS, BC multiplied by AD. Half of cancel. What we get? Base multiplied by height. Base multiplied by height. In short, what we can say? If in triangles of different base and different height, the ratio of their areas equal to the ratio of product of their corresponding base and height. What I am saying? If such type of triangle is given, such type means different base and different heights, then ratio of their areas equal to the ratio of product of their corresponding base and height, means base multiplied by height upon base multiplied by height. Suppose you are given, suppose this type of triangle is given, LMN, base is given 5, this 3, here S, T, P, this triangle 4, 2, and you ask what will be the ratio of their area, then what we can do?
How we can do? What will be the answer? What will be the answer? Area of triangle LMN upon area of triangle SDP equal to base multiplied by height, means 5 multiplied by 3 upon 4 multiplied by 2 means 15 upon 8. ये इस प्रकार का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए हमको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ हमको समझना है ट्रायंगल किस प्रकार के है। और रेशियो ऑफ एरियाज हमको पूछा, एरिया रेशियो ऑफ एरियाज पूछा है और ट्रायंगल का बेस अलग है, हाइट अलग है। देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट्स। रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट्स, ये हमको ध्यान में रखना है। ये पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, काय के लिए है, ऐसे दो ट्रायंगल जिसमें बेस और हाइट अलग अलग है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या देखते हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब मान लो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल है, एक ऐसा है, ये दो ट्रायंगल ए बी सी पी। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, इसकी हाइट क्या है डी, और ये ट्रायंगल की हाइट क्या है ई। ये ट्रायंगल की हाइट क्या है पी। हाइट ऑफ एबीसी इज एडी एंड हाइट ऑफ बीपीसी इज पी। अब यदि ऐसे दो ट्रायंगल हैं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ऐसा यदि हमको क्वेश्चन पूछता है तो क्या होगा, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं जैसा हमने किया। क्या हो जाएगा, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डी। और यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ बी सी मल्टीप्लाइड बाय पी। यदि हम उसका रेशो लेते हैं तो क्या मिलता है हमको, इनका यदि रेशो लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, क्या मिलेगा हमको, हाफ बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी अपॉन हाफ बी सी मल्टीप्लाइड बाय पी। हाफ ऑफ कैंसिल, बी सी कैंसिल, व्हाट वी गेट ए डी अपॉन पी। क्या मिला हमको, ए डी अपॉन पी। तो ये किस प्रकार के ट्रायंगल है, कॉमन बेस है, कॉमन बेस है या सेम बेस है। देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। कब, when this happened, when their bases are equal और bases common। यदि ऐसे दो ट्रायंगल जिनके बेस कॉमन हो या सेम हो, इस केस में रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। एंड ए बी इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट। ये इस पे प्रॉब्लम आएंगे, हमको देखना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कैसा, ये ऐसा दे दिया तुमको, इस प्रकार का प्रॉब्लम है, ए बी सी डी ऐसा है। अब देखो ए बी सी बी डी सी क्या है, दोनों के बेस इक्वल है। तो क्या करेंगे हम, ए सी अपॉन सी डी। यहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ कोई नंबर रह सकती है और हमको पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। हमको ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमको देखना है ट्रायंगल में इक्वल बेस है, इक्वल हाइट है, इक्वल बेस है, क्या इक्वल है या डिफरेंट बेस या डिफरेंट हाइट है, ये हमको देखना है। और उस प्रकार की उसी का इस्तेमाल करके हमको रेशियो ऑफ देयर एरियाज निकालना है। आई अंडरस्टैंड? यस सर। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं, यहाँ बेसिस इक्वल थे। अब हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें क्या इक्वल हो, हाइट। मान लो ये दो पैरेलल लाइन है,
और इसमें दो ट्रायंगल ले लिया हमने, ए बी सी डी ई, ऐसी दो पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल एम, मान लो एल पैरेलल एम है। और यहाँ ए बी सी एंड डी सी आर टू ट्रायंगल्स, the angle between two parallel lines have same height, AM and DN are equal. Why? Because these two triangles lies in between two parallel lines. तो इस केस में क्या है, अभी इसके पहले क्या देखा था हमने, इसके पहले देखा था उसमें बेस सेम थे, इसमें क्या है, इसमें क्या सेम है, क्या सेम है, हाइट, इसमें हाइट सेम है, इसमें हाइट सेम है। तो अब अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, अभी तक देखे थे कि पहले बेस इक्वल से, अभी हाइट सेम है। और पहली केस में सबसे पहले इसमें तो दोनों ही अलग थे, दोनों ही अलग थे, बेस भी अलग था और हाइट भी अलग थी। तब हमने रेशियो ऑफ एरियाज क्या होता है वो देखा था। इसके पहले वाली सेकंड प्रॉपर्टी में हमने देखा था ये थर्ड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या देखा था, when base is common then ratio of their areas equal to the ratio of their corresponding heights। तो हम ये केस देखते हैं क्या, जब दोनों की हाइट इक्वल हो, दोनों की क्या इक्वल हो, हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया क्या होगा, वैसा ही प्रूव करना है, सिमिलरली सिमिलर जैसा हमने इसके पहले दो जो प्रूव किए हैं उसी हिसाब से यदि हम प्रूव करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी इक्वल टू ए एम अपॉन डी एम, ए मिलेगा क्योंकि बेस मल्टीप्लाइड बेस बेस दोनों का कैंसिल, नहीं ए एम अपॉन डी एन नहीं, सॉरी बी सी अपॉन सी, बी सी अपॉन सी मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, बिकॉज बोथ आर लाइज इन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस है इसलिए दोनों की हाइट सेम है, हाइट हाइट कैंसिल होगा और हमको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इसको हम इन शॉर्ट क्या कहेंगे, इन टू ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस व्हेन इफ देयर हाइट्स आर इक्वल। हमको ये तीन प्रॉपर्टी यदि ध्यान में है तो हम 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। 1.1 में ये तीन प्रॉपर्टी हमको इस्तेमाल करना है। पहली प्रॉपर्टी इन शॉर्ट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि समझने के लिए हम लिखते हैं क्या, इफ A1 is a area of triangle 1, area of triangle 1 and A2 is area of triangle 2, A1 is area of triangle 1 and A2 is area of triangle 2 and B1 and H1 are bases, base and height respectively। then A1 upon A2 क्या रहेगा, B1 multiplied by H1 upon B2 upon H2, काय के लिए, for distinct base and height। यदि दो ट्रायंगल जिसमें बेस और हाइट अलग अलग है तो उनके एरिया का रेशियो क्या रहेगा, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट अपॉन बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, पहले का बेस मल्टीप्लाइड बाय पहले की हाइट अपॉन दूसरे का बेस मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की हाइट। अब यदि इफ H1 equal to H2 then what, A1 upon A2 equal to what is B1 upon B2। if heights are equal then ratio of their areas equal to the ratio of their corresponding bases। समझ में आया? यस सर, समझ में आया ना? यस सर। if H1 equal to H2, if H1 equal to H2 then what, A1 upon A2 equal to
H1 H2 हो गया. अब क्या, if B1 equal to B2, then A1 upon A2 equal to H1 upon H2. यदि दो ट्रायंगल जिसमें बेसेस इक्वल है, then ratio of their area is equal to the ratio of their corresponding bases. तो इस तीन प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और ये तीसरी प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी में हमको देखना है जो ट्रायंगल दिए है उसमें बेस सेम है या हाइट सेम है या दोनों डिफरेंट है, और उसी को देख के हमको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो 1.1 इज बेस्ड ऑन कंप्लीट दीज थ्री प्रॉपर्टीज. अब जैसा कि किताब में हम देखते हैं प्रॉब्लम 1.1 की एक्सरसाइज लेते हैं हम. लास्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं 5वां. कौन सा प्रॉब्लम लेते हैं, फिफ्थ प्रॉब्लम लेते हैं 1.1 का फिफ्थ प्रॉब्लम. ऐसा है, ABC AD is the height of ABC. Again here is the segment CP and Q. We ask 4 questions here. First we have to find area of triangle PQB upon area of triangle PBC. ये दूसरा है area of triangle PBC upon area of triangle ABC. Third, area of triangle ABC upon area of triangle ADC. And fourth, area of triangle ADC upon area of triangle PQC. इस फिगर पे हमको ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अब पहले देखते हैं PQB. Where is PQB? PQB. Have you seen? PBC. कैसे ट्रायंगल है? देखो इसको, PQB एंड PBC कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर नहीं, हमको तीनों प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है. यहाँ भी इक्वल बेस है, इक्वल हाइट है, या ये बेस इक्वल है, हाइट अलग है, या हाइट इक्वल है या बेस अलग है. ये तीन के बारे में सोचना है. हाँ? इन दिस ट्रायंगल PQB एंड PBC, मैं कुछ बातें कहने को भूल गया, और नोट कर लो, लिखो उसको. देखो, इन ट्रायंगल PQB एंड PBC, यदि दो ऐसे ट्रायंगल है, मान लो ये ऐसे दो ट्रायंगल है, ABCD, ऐसे दो ट्रायंगल है. क्या इसमें ABC लिया हमने, ABD लिया. क्या लिया? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD. इधर ध्यान दो, ABC एंड ABD ऐसे ट्रायंगल है. ऐसे है कैसे? Those triangles, the base are collinear, and one vertex is common. लिख लेना ये क्या? If in those triangles, if bases are collinear, and one vertex is common, then their heights are equal. heights equal कब होती है?
जब उनके बेसिस कैसे रहेंगे, एक ही लाइन में होंगे और एक वर्टेक्स क्या रहेगा, कॉमन रहेगा. In any two triangles, if their heights are on the same basis on the same line and one vertex is common, then their heights are equal. ये ध्यान में रखना है. तो ये कैसे ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल्स ऑफ सेम हाइट. इक्वल हाइट. तो ये इसको नोट करना है, इसको लिख लेना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, ये चारों में पड़ सकती है. तो क्या है ये, in those triangles if bases are collinear means bases are on the same line and one vertex is common, one vertex common होना. तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सेम हाइट के होते हैं, इक्वल हाइट के होते हैं. तो अब पहला प्रॉब्लम, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC क्या होगा रे आदिश? यस सर. क्या होगा, काय के रेशो में रहेगा इसका, रेशो ऑफ एरियाज, बेस अपॉन बेस. बेस अपॉन बेस. व्हाई? बिकॉज हाइट आर सेम. हाइट्स आर सेम. ये ऐसे ट्रायंगल है जिनकी हाइट सेम है. और हमने देखी है एक प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी, यदि कोई भी ट्रायंगल के बेस इक्वल होते हैं तो उनके एरिया का रेशो हाइट के रेशो के बराबर होता नहीं, बेस के रेशो के बराबर होता है. हाइट्स आर इक्वल देन रेशो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस. तो ये PQB का बेस क्या है रे, BQ, और इसका बेस क्या है, BC. और यहाँ रीजन लिखना है ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट. हो गया इसका आंसर. कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है. यू कैन इजीली राइट. बस यू हैव टू फाइंड वेदर दिस ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट, इक्वल बेस और डिफरेंट बेस और हाइट. ये दोनों तीनों बातें हमको समझना है. ये पहले का आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. क्या है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है, यहां करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. PBC तो हो गया, ABC, PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब ये कैसा ट्रायंगल है, दोनों क्या कॉमन है दोनों में, बेस. बेस कॉमन है. therefore their heights are, one vertex is common, one vertex is common. C is BC, कंप्लीट कंबाइन बेस है ना. क्या है रे, कॉमन बेस. दोनों का कॉमन बेस है, दोनों का बेस सेम है. तो एरिया, रेशो ऑफ देयर एरियाज क्या रहेगा, हाइट अपॉन हाइट. हाँ, तो पहले की हाइट क्या है, PQ, और दूसरी की हाइट AD. वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज देयर बेसेस आर सेम. Both triangles have common base. In those triangles, if their bases are common, then ratio of their area is equal to ratio of their corresponding heights. हाँ, ये दोनों के बेस सेम है, दोनों का BC है, इसलिए ये रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइट अपॉन हाइट, PQ अपॉन AD. हम यहाँ रीजन लिखेंगे ट्रायंगल्स ऑफ कॉमन बेस, कॉमन बेस. हो गया, दूसरा हो गया. कितना सिंपल है बच्चों, कितना सिंपल है रे, बहुत इजी है सर. बहुत इजी है ना. हमको इसके लिए क्या करना है, तीन प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है. क्या करना है इसके लिए, तीन प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है. यदि हमारी तीन प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में आ गई तो हम इसमें से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जैसा ये थर्ड वाला, अब ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. रीजन लिखना ना भूले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. अब देखते हैं ABC किधर है, ABC ADC. हाँ, कैसे है ट्रायंगल ये, which type of triangle is this, triangle ABC and triangle ADC?
Same height. Same height. Why? AD is same height of both triangles. Why? Because they have common vertex and base is on the same line. Any two triangles, if base is on the same line and one vertex is common, C is common in both triangles. C is common in both triangles. If one vertex is common and base lies on the same line, then their heights are equal. तो क्या आएगा? Ratio of their area is equal to ratio of their corresponding heights. Heights. हाँ, Bases. बेसे सेम हाइट वाले ट्रायंगल है ये. कैसे रे? कैसे है ये ट्रायंगल? कैसे है? सेम बेस वाले है, इसलिए कैसे आएंगे वो? हाइट के रेशो के बराबर आएंगे. पहले की हाइट नहीं, हाइट बेस के रेशो में इसलिए आएंगे. बेस के रेशो में इसका बेस क्या है? BC और इसका बेस क्या है? DC. ट्रायंगल्स ऑफ, रीजन लिखना है, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल Heights. हो गया. Triangle of equal height, therefore ratio of their area is equal to ratio of their corresponding bases. अब चौथा निकालते हैं. चौथा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. चौथा देखते हैं अपन. क्या देखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. PQC. अब यहाँ पे देखो रे, वन वर्टेक्स इज Common. कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? C. C वर्टेक्स कॉमन है. और बेस कैसा है? In the same line. लाइज ऑन द सेम लाइन. बेस इज लाइज ऑन द सेम लाइन. यदि बेस लाइज ऑन द सेम लाइन and one vertex is common, then what happened? Then they have Same heights. same height. Then ratio of their area is equal to Base upon base. ratio of their corresponding bases. तो पहले का बेस क्या है? DC. और दूसरे का बेस क्या है? ADC. एंड दूसरा कौन सा बोला है अपने को? PQC. दूसरे का बेस है QC. तो क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट. कितनी सिंपल एक्सरसाइज है. इसमें से हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इसी का आधार लेके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, अकॉर्डिंग टू मैंने जो पहले कहा था, क्या कहा था कि ये वर्टेक्स कॉमन होने चाहिए और बेस कोलिनियर होनी चाहिए. तो रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ऐसा बोला था. लेकिन क्या था वो बेस वाला वर्टेक्स कॉमन होना था क्या? ये राइट है क्या? राइट है ये मैंने लिखा राइट है. नो सर, ये तो गलत है ना. गलत है बराबर. नहीं तो मैंने जैसा बोला तो वैसा लिख लोगे तुम. क्या कि सर ने बोला था कि ये वर्टेक्स कॉमन हो और बेस इज ऑन द सेम लाइन, देन देयर रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस, या उनकी हाइट इक्वल होती है. ऐसा तुम समझ लोगे. वो मैंने जो कहा था वो सही था, लेकिन जो कॉमन वर्टेक्स है वो बेस का वर्टेक्स नहीं होना. ये C जो है, C इसके बेस पे भी है. अपोजिट वर्टेक्स कॉमन होना. कौन सा वर्टेक्स कॉमन होना? C BC पे आ रहा है. QC. C lies on the base. C is lies on the base of APC. ADC. This is ADC. C is lies on triangle base of ADC, and C is also lies on base of triangle PQC. हमको C जो है वो बेस का कॉमन वर्टेक्स नहीं होना. कॉमन वर्टेक्स एंड बेस इज ऑन द सेम लाइन ऐसा रहे तो उसकी हाइट इक्वल होती है. लेकिन कब? जब वो बेस का कॉमन वर्टेक्स नहीं होना. ये C जो बेस ही पे, QC बेस है और इसका DC बेस है. बेस पे कॉमन वर्टेक्स नहीं होना. कहाँ होना? अपोजिट वर्टेक्स कॉमन होना. यहाँ हाइट इक्वल नहीं है. यहाँ हाइट इक्वल है क्या? नहीं है. जो मैंने लिखा तो ये बराबर है क्या? नो सर. नहीं. तो मैंने लिख दिया, तुमने मान लिया.
तो तुमको समझ में नहीं आया इसका मतलब? समझ में आया क्या? नहीं। तो हमको बेस कैसा होना? वर्टेक्स कौन सा होना? बेस के अपोजिट वाला। बेस इज ऑन द सेम लाइन एंड वन वर्टेक्स इज कॉमन, अपोजिट वर्टेक्स इज कॉमन, देन दे हैव इक्वल हाइट्स। इनकी हाइट इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि बेस वाला वर्टेक्स कॉमन है। बेस वाला वर्टेक्स कॉमन होना क्या? नहीं। फिर ये राइट है क्या? नहीं। तो यहाँ क्या आएगा? दोनों बोथ हैव डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट। सभी की, दोनों की बेस अलग है और हाइट अलग है। एडीसी, एडीसी क्या आएगा? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी लगी थी लेकिन पहली प्रॉपर्टी नहीं लगी। यहाँ लग रही है पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों का बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है। तो बेस इज डीसी मल्टीप्लाइड बाय डीसी मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज एडीसी, एडी। और यहाँ क्या है? पीक्यूसी में बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट क्या है इसकी? पीक्यू। ऐसे ये ट्रायंगल्स ऑफ डिस्टिंक्ट बेस एंड हाइट। अब बराबर हुआ। कैसा है? तुमको समझ में नहीं आया? तो बेस कॉमन वर्टेक्स कौन सा होना? बेस वाला वर्टेक्स कॉमन होना क्या? नो सर, अपोजिट वाला। अपोजिट वर्टेक्स शुड बी कॉमन। अब X. यहाँ पे देखो, यहाँ सी कॉमन है, लेकिन वो कहाँ है सी कॉमन? बेस पे कॉमन है। बेस पे कॉमन होना क्या? नहीं। लेकिन यहाँ अपोजिट वर्टेक्स, ये बीसी का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ये। और ये डीसी का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? पी। तो ये कैसा है? ये दोनों ट्रायंगल कैसे है? बेसिस ऑन द सेम लाइन बट देयर वर्टेक्स इज कॉमन। ए बी सी, ए बी सी दोनों में ये वर्टेक्स कॉमन है, अपोजिट वर्टेक्स कॉमन है। कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? अपोजिट। एंड बेस इज ऑन द सेम लाइन, therefore ratio of their areas equal to the ratio of their corresponding bases। क्यों? क्योंकि दोनों की हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल क्यों है? क्योंकि बेस इज ऑन द सेम लाइन एंड देयर वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉमन। ये इज कॉमन हियर, ये इज कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अपोजिट वर्टेक्स कॉमन है, यहाँ अपोजिट वर्टेक्स कॉमन नहीं है। कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? बेस वाला। बेस वाला वर्टेक्स कॉमन होना क्या? नो सर। नहीं। कौन सा होना? अपोजिट वर्टेक्स कॉमन है और बेस इज ऑन द सेम लाइन, देन देयर हाइट्स आर इक्वल। ये चारों प्रॉब्लम है जिसमें यहाँ कॉमन बेस है, यहाँ कॉमन बेस है, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यहाँ पे हाइट्स इक्वल है, देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसेस। और यहाँ